And now the today's session we will start on topic of square root series. Okay. So last we discussed square root topic, and now we are discussing about the square root series, which I discussed yesterday also. So कंटिन्यू करते हैं और सीरीज को आगे बढ़ाते हैं. कल देखिए मैंने आपसे बात करी थी, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सीरीज के. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट सीरीज. ओके, सो वन बाय वन हम एक एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे और डीपली उसमें सब कुछ आपको पढ़ना है. ठीक है, और ये टॉपिक मैक्सिमम 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो डीपली इसको डिस्कस करेंगे सभी और ध्यान देंगे. कल मैंने आपको एक यूनिक पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बताए थे, बट आज मैं उन सभी पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा जिन पर भी रूट सीरीज मेक होती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर एक सेम पैटर्न है. ये फर्स्ट पैटर्न है, इट इज अ लेवल 1 या फिर आप ये कहते हैं टाइप 1 है. ओके, तो देयर इज टाइप 1. टाइप 1 में क्या होता है, देखिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, रूट सीरीज का आइडेंटिफिकेशन. हालांकि हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बट बाय सॉल्विंग यू कैन let the answer is x, and then in the next step you will have 6 plus, or this will be repeated, or you can, this term is equal to the x. Okay, now cancel the root. Square x square minus x minus 6, and this is the quadratic equation, and by solving this equation you will have your roots. So what will be the factors of 6? So x square minus 3x plus 2x minus 6 will be the factors. By taking common, x minus 3 will be there, and plus 2 x minus 3 will also there, and the x plus 2 and x minus 3 are the two roots of this expression. By equating 2 x plus 2, by equating 2 x will generate minus negative value of 2, but when you equate x minus 3 equal to 0, then x value will be positive 3. And you already knew that minus negative value is also be ignored and the positive value also be accepted, always be accepted. Now, so the value answer of this expression is 3. But मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि कभी भी जब कोई सेम नंबर रूट के अंदर अगेन एंड अगेन टाइम्स रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट तक तो जाएगा सॉल्यूशन, ये बात पक्की है, बट उसका आंसर बनाने के लिए आप क्या करें. आंसर बनाने के लिए मैं आपको बताऊं, सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, अंदर रखे हुए नंबर के दो टुकड़े करने हैं, मतलब दो फैक्टर्स करने हैं हैविंग डिफरेंस 1. ऐसे दो फैक्टर्स, सच टाइप ऑफ फैक्टर्स हैविंग डिफरेंस 1. So having difference 1, 2 into 3 is 6 and 2 is 3, having difference 1. So if the series is in plus, if the series is in positive way, then the answer will be bigger number. Just like same, 4 into 5 is 20 and 4 5 difference is 1. So the answer is 5. Make sure 72 8 9 the 72, so minus it means smaller number will be your answer. 132, it is very famous number 132, it is 11 into 12, and if it is plus then make sure your answer will be 12. Okay, and then again 9 into 10 having difference 1 with the negative, so the answer will be 9. बट अब कोई कहता है कि सर मान लो कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसके हम रूट्स नहीं बना पा रहे हो, भले ही वो सिंगल डिफरेंस में टूटता हो, तो क्या करेंगे हम. तो मैं आपको देखो बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है. एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना है, प्रोसीजर तो मैंने बता दिया. आपको क्या करना है, 600 के अबव एंड 600 के जस्ट बिलो, 600 के जस्ट अबव और जस्ट बिलो वाले ऐसे नंबर ले लो जो किसी के परफेक्ट स्क्वायर है. तो परफेक्ट स्क्वायर इट मींस 24 का स्क्वायर होता है 576, एंड 25 का स्क्वायर होता है आपका 625. 600 इन बिटवीन देम, यस और नो. सो द नंबर, so the factors are 24 and 25 definitely having difference 1, or you know very well 24 into 25 is 600 done. And now if it is positive then the bigger number will be answer, if it is negative then the smaller number will be your answer. Yes, now so move ahead guys, move to the next question. And आज बहुत कम लोग दिख रहे हैं भाई, मौसम थोड़ा सा खराब हो चुका है ग्वालियर का, तो आज कुछ लोग भी बिछड़ चुके हैं हमसे, है ना. चलिए, so 20 20 20 20, तो you can easily solve this question. 4 into 5, if it is plus then the answer will be 5.
but I am just talking about the root 11 up to infinite. So what will be the answer of this expression? Because of this is not factored in the difference of 1. Yes or no? और एक्चुअली मैं ये भी कह सकता हूं कि ये प्राइम नंबर भी है. चलो टूट नहीं रही ये बात अलग है, बट इट इज अ प्राइम नंबर आल्सो. So what will you have to do? What you will have to do to make the answer of this expression? So मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं बढ़िया सा, जो कि उस एक्सप्रेशन से निकल के आया. ठीक है. एक्चुअली देखो बेसिक प्रॉब्लम क्या है. बेसिक प्रॉब्लम ये है, if you are letting one here, then what you will do? You will do 17 plus x is equal to x, and by cancelling root there will be a square. X square minus x minus 17 is equal to 0, and then after you will say, sir, 17 is a prime number. We are unable to. 11 is a prime. Sorry, 11 is a prime number. 11 आएगा. Okay, 11 is a prime number, and we are unable to factorize the 11 into two parts. So how can you define the root of this expression? So you know very well in the 9th or 8th or 7th class, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि finding the roots of quadratic equation is another method which is Sridharacharya. By the Sridharacharya formula, you can make it easily. Minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2 है. लेकिन अब देखो इतना गंदा तरीका लगाओगे तो आपके रूट निकलने में बहुत परेशानी होगी. इसलिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका दे रहा हूं, वो आप ध्यान रखिए. चाहे नंबर टूटे चाहे नहीं टूटे, चाहे नंबर फैक्टराइज हो सिंगल डिफरेंस में चाहे नहीं हो, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है. वो फॉर्मूला है ये, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. बस अब आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए हमेशा के लिए. अब ये नंबर टूटेगा तो भी ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल होगा, अब ये नंबर नहीं टूटेगा तो भी ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल होगा. लेकिन ये सब कुछ नहीं है बच्चे, ये ध्यान रखना. अभी आगे बात खुलेंगी, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुलेंगी. अभी आप ये फॉर्मूला पकड़िए. आपको मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. सो अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक अ वेरिफिकेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, सो यू कैन सॉल्व दिस इजीली. पुट द वैल्यू ऑफ a इज 20, and when you put a is 20, then it will be 24. The 80 plus 1 is 81. Under root 81 is 9. And if it is this series in positive, then take it positive. Plus 1 upon 2, 10 by 2, it's 5. So the answer is already 5. Yes or no? So verification is done. And now you can apply this formula everywhere where the same pattern is followed of in root series. Okay. So the 11 plus 11 plus 11 plus 11 up to infinite. So you can easily say that 11 for the 44 plus 1 is 45. Under root 45 plus 1 upon 2. Yes or no? Yes or no, buddy? अब देखिए इसको सॉल्व नहीं करना बच्चे, इसको सॉल्व नहीं करना आगे. ठीक है, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे ही छोड़ दो इसे. अगर ये नीचे डिनोमिनेटर में रूट होता तो हम सॉल्व करने का सोचते भी, बट नाउ यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन by from here. Okay, now so the next question on your screen is right here, root 7 plus root 7 plus root 7 and so on. You will easily say 7 for the 28 plus 1 is root 29 and plus 1 upon 2. And also you can say root 13 minus root 13 minus root 13 up to infinite. 13 for the 52 plus 1 is root 53. But if it is minus, then you will take minus here and by 2. Root is only on the term 4a plus 1. Is this clear to everyone? वंशिका, आपका बेटा वंशिका कैमरा ऑन है. प्लीज म्यूट योर, प्लीज ऑफ योर वीडियो. ओके. नाउ सो द फॉर्मूला इज वेरी यूनिक. एंड अब मैंने आपको देखो क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2. ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखो अपडेट होता जाएगा. इसी फॉर्मूले को कैसे अपडेटेशन में डालते हैं ये देखना आप लोग. ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न पर सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें अभी और चेंजेस होंगे. अब देखिए ये चेंजेस हो गए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस वन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन द अल्टरनेट सीरीज, इन द अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ साइंस, only the value 13 is very important. Only the value of 13 is very important.
बिकॉज जितनी भी बार ये क्वेश्चन आया है आज तक, ओनली एंड ओनली 13 इज एक्सिक्यूटेड। अगर अल्टरनेट सीरीज में आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ओनली एंड ओनली 13 विल बी एक्सिक्यूटेड। अब बट हाउ हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो या तो आप x मानकर कर सकते हैं, लेकिन x मानकर हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो मैं आपको अभी फॉर्मूला बता के आया हूं कि √4a + 1 + -1/2 होता है। या सुनो, बट अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर ये अल्टरनेट सीरीज है, मतलब सीक्वेंस ऑल्टरनेटिवली चल रहे हैं, तो आपको ये +1 नहीं यूज करना है। आपको सिर्फ यहाँ पर हल्का सा चेंज करना है इस फॉर्मूले में, बाकी सब सेम रहेगा और यहाँ पर -3 कर देना है, दैट्स इट और नथिंग। मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो अगेन एंड अगेन टाइम्स रिपीट हुआ है बिकॉज ऑफ द वैल्यू इज वेरी यूनिक। बाय पुटिंग द 13 हियर एक्सेप्ट ऑफ a, so 13 4 the 52 - 3 is 49, and under root 49 is solved out and gain integer value. If it is started by minus, then accept this minus here. The 7 - 1/2, this will be 6/2, this will be 3. So this will be the correct answer of this question by using this formula. Okay, and when you put 11 here, 11 4 the 44 -3 is 41, so under root 41 - 1/2, this will be the bloody right answer of this expression. Are you all clear my point, buddy? Are you all clear? देखो मैं क्यों कह रहा था कि बार बार यही क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, वो इसलिए कि आपको ये पता पड़ गया होगा कि आपसे 13 वाला ही क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही वैल्यू है ऐसी जिसका परफेक्ट आंसर आता है। यस और नो? बड़ी आयुष, आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग में क्यों है बेटा? क्या प्रॉब्लम है आपको? आयुष की रिक्वेस्ट पेंडिंग में डली हुई है ना? ओके, चलिए सो मूव टू द नेक्स्ट। मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया और उसी को अपडेट किया -3 में। ओके ना, अब ये क्वेश्चन तो मैं कल भी डिस्कस कर चुका था। व्हेन, अब देखो ये सेकंड टाइप है, ठीक है, सेकंड या थर्ड टाइप कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइप आपका सेम पैटर्न पे था, सेम साइन पे था, सेकंड टाइप आपका अल्टरनेट साइन पे था, एंड थर्ड टाइप आर हियर विदाउट एनी साइन एंड विदाउट एनी लिमिटेशन। वो विदाउट विद अ लिमिटेशन, सॉरी, ये लिमिटेड टाइम्स है। आपको जो सीक्वेंस दिया गया है वो लिमिटेड टाइम्स है, मतलब √5 ऐसा लिमिटेड टाइम्स, ओनली 3 टाइम्स रिपीटेड। when √5 when a single number is repeated inside the root series again and again times but the limited time, then answer would be made by this logic. So read the number which is inside to the series, read the number here in the answer, okay, and then count the number of roots, and then count the number of roots. How many roots are there? So 1 2 and 3. If 3 roots, then make it power of 3 of 2. Okay, so 2 to the power 3 is what? 8. And make your answer like just like this. 8 is here and 7 is here. It means the answer will be 5 to the power 7/8. If it is 8, then write it 8 again. And if count the number of roots 1 2 3 and 4, so 2 to the power 4 is 16, and make it here 16 and -1 will be here. Yes or no? So the answer is 8 to the power 15/16. Are you clear with me? Everybody? Yes, sir. रिस्पॉन्सिव रहिए सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7 7 7 7 7 will be here and 15/16 will be here, and but this is the something little bit different from the other three. This is something different from the other three, above three. Okay, so when a number is comes again and again inside the series and goes up to the infinite, then the answer is very simple. Answer is that which is Same inside to the number. Yes or no? कल मैंने प्रूफ भी करके दिया था ये आपको, है ना? चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी को इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो YouTube पर अपलोड कर दी गई है, तो आप YouTube से इस क्लास की रिकॉर्डिंग वॉच कर सकते हैं, और ओनली फॉर 7 days है। आफ्टर 7 days द रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली विल सस्टेन, ओके, एंड रिकॉर्डिंग विल बी सीन बाय टाइपिंग ऑन द YouTube square root and cube root by Ashish Agrawal. Square root and cube root by Ashish Agrawal, ASHISH, ठीक है। ये पूरा नाम टाइप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा।
और आगे टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट बाय आशीष अग्रवाल, बिकॉज द यूट्यूब चैनल इज वेरी न्यू नाउ, so it's not so much famous. When it becomes famous, then you automatically search class. Okay, root 6 up to infinite, and I already told you that the answer will be the same number which is inside to the series. Yes or no? Everybody clear? Now, Yes, sir. अब चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं अपन, ठीक है? And now the level is up, and these all the things I already told you and I already teach you how to find out the cube root and how to find out the square root also. Okay, so this is the cube root, and I already told you in the last class how to find the cube root, last to last class. So if it is cube root, if you are going to find out the cube root, so put a comma after 3 digit from the right hand. What is here? 4 is except 1, 6 is 6. Yes or no? And if you want to take out the square root of this expression, if this number, so 23 से जस्ट अबव जो स्क्वायर नंबर है वो 4 है, एंड 4 5 से 20 इज बड़ा, बड़ा मतलब ये किस से आएगा? 2 से और 8 से, तो 48, एंड 48 प्लस 16 is 64. 64 under root 64 will be 8. So you can easily correct this question by these short tricks. If you have the short tricks, then you will make this answer very easily. If you have not, then you will in trouble. Okay, so this is 3 and this is 8. Why adding 8? देखो मैंने आपको ये बताया था क्यूब रूट में 149650. If it these 6 digits are on the unit place of any cube root number, then the number will be same in the cube root of the same number. Okay, so 32 से just पहले का क्यूब कौन सा था? 3, and if here is 8, then subtracted it by 10. Getting buddy. 32 minus 16 is what? 16. Under root 16 will be the 4. Yes or no? Now, so ये दो क्वेश्चन आप कर चुके हैं. अब देखिए कैसे आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिए. चलिए, next question on screen, and next question is below to the previous question. 31 plus 18 plus 34 and plus 22 25. मतलब ये कह रहे हैं कि if the different numbers are occurred in the root series, then what you will do? So you will do like from the right hand side you can solve this easily. 15 34 plus 15 is 49 मतलब 7. 18 plus 7 is 25 मतलब 5. 31 plus 5 is 36 मतलब 6 will be the right answer. But how can you solve this very directly? So directly you can solve this by only this number and on this expression, on this symbol. तो आप ये देखिए 31 है और जस्ट बिहाइंड इसके जो है वो प्लस सिंबल रखा हुआ है. तो 31 के जस्ट बिहाइंड आप अगर देखेंगे तो प्लस सिंबल है. इट मींस द आंसर विल बी 31 से अबव वाला स्क्वायर रूट नंबर होगा, और 31 से जस्ट अबव स्क्वायर रूट नंबर जो है वो 36 है, विच इज 6. तो मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, ठीक है. बाकी अब कोई कहे कि नहीं सर ये ट्रिक कभी फेल हो सकती है, बेटा आप अगर जबरदस्ती इसके पीछे पढ़ोगे तो ये ट्रिक जरूर फेल होगी. कोई सी भी, ये नहीं कोई सी भी ट्रिक आप बनाते हो तो वो जरूर फेल होगी अगर आप उसके पीछे पड़ जाओ. अगर एग्जाम के अकॉर्डिंग जाओगे तो ये ट्रिक सारी सक्सेसफुल है ना. तो मेक दिस इक्वेशन. So by putting the comma after 3 from the right hand, you will have 10 here, and 10 is what? 2, because it is cube root, and 8 is here, then 22 minus 45 will be here, plus, and what is here? Here will be 58, because it is 5 and last two subtracted by 10 is 58, and square root of this expression 58 plus 45 minus 22. 45 minus 22 is what? 23, and by adding 58 plus 23, root 81. Root 81 will become 9. Yes or no? Yes or no, buddy? देखिए आज बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं. अब इसका कारण क्या है वो आप लोग पता कीजिए. बाकी थोड़ा स्पीड बनाइए जिससे आज हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कंटेंट कवर कर पाए. ओके, so the next question on your screen, and you can easily solve this question now. Solve this question. Pick the right answer.
root 272, root 272, root 272, root 272 plus up to infinite. What will be the value of x? What will be the value of x? So root 272 is what? Root 272 is that, मैंने आपको बताया कि when a same number is repeating again and again time inside the root series and going up to the infinite, then you what have to do? What you should have to do? You should have to do factorize this number into two part. Factorize this number into two part having difference 1. So मैंने आपको ये बताया था अगर कोई नंबर ज्यादा ही बड़ा है और आपसे नहीं फैक्टराइज हो पा रहा तो आप क्या करेंगे? आप 272 के जस्ट पहले वाला मतलब 256 which is 16 and 289 which is 17 आप टेक करेंगे. 16 into 17 ट्राई करेंगे क्या 272 आ रहा है? Yes. If it is yes, then this is plus this answer will be 17. Yes or no? Yes, sir. So the next series on your screen right here. Make this correct answer fast. This is the first option. सॉल्व कीजिए भाई जल्दी. देखो करेक्ट करना है, गलत नहीं करना, ठीक है? सभी लोग आंसर कमिट करें तो करेक्ट आंसर कमिट करें. रॉन्ग आंसर कमिट कर देते हैं तो कोई बात नहीं, उसको करेक्ट हम कर देंगे, बट अपनी साइड से करेक्ट ही कीजिए. चलिए so root 31 root 31 root 31 root 31 root 31 up to infinite. You can solve this by देखो a number again and again times repeat inside the root series and going up to infinite. So what you will have to do? You will have to go with this formula. Under root 4a plus 1 plus minus 1 upon 2. This is not minus, okay? This is plus 1 already. So 31 into 4 is 124 plus 1 is 125 or plus 1 upon 2. So root 125 it is what? Root 125 is what? 5 root 5 plus 1 upon 2, and by subtracting these two terms 2.5 root 5 plus 0.5. This will be the correct answer of this expression. Yes or no? Are you all right, buddy? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपकी स्क्रीन पर आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक्चुअली क्या है, जो बच्चे नहीं जानते इसको बाय ट्रिक सॉल्व करना, तो मैं आपको बताऊं. देखिए बच्चे क्या होता है एक्चुअली, आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो रूट 13 प्लस रूट 13 प्लस रूट 13 अप टू इनफिनिट जाएंगे. यस और नो? सो आप जब रूट 13 जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा. 13 4 जा 52 प्लस 1 प्लस माइनस 1, इट मींस प्लस 1 अपॉन 2, एंड दिस विल बी रूट 53 minus 1 upon 2. Yes or no? This will be also root 53. तो मैं इससे रूट 53 लिख देता हूं ना, क्योंकि सॉल्व करके वही आना. अब मुझे बताइए रूट 53 अपॉन 2 एंड रूट 53 अपॉन 2 इज हियर, प्लस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 1 अपॉन 2 इज हियर. अब मुझे बताइए साफ साफ कि क्या किया जाए, इनको क्या सम कर दें? तो इनको सम करने पर तो जीरो आना चाहिए, मतलब a प्लस बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए. तो ये ऑप्शन में नहीं है, बट आपको ऑप्शन में दिया है a प्लस बी a माइनस बी और बाय एडिंग प्लस 1 और बाय एडिंग माइनस 1. तो अगर मैं ये कहता हूं, देखिए अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, इट मींस अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बाय ओपन दिस ब्रैकेट माइनस विल बी एग्जीक्यूटेड हियर एंड दिस विल आल्सो प्लस. ओके, सो दिस विल कैंसिल आउट बाय दिस and 1 by 2 is 1, and by subtracting 1 here you will say this will equal to the 0. So the option number B will be correct answer. But मैं कहूंगा ऐसे कभी नहीं करना. आप मुझे बताओ ये 13 पे कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है, ऑप्शन में जो 13 है वो तो गायब है, तो आप कुछ भी मान सकते थे. आप ये मान लीजिए, ये मान लो ये 12 था, कोई ऐसा नंबर मान लो जो एक के डिफरेंस में ब्रेक होता है. यस, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर 4 आता है, इसका आंसर 3 आता है. यस और नो? तो 4 और 3 में क्या रिलेशन, मतलब ए और बी की वैल्यू आप इस ऑप्शन में रख दें, जैसे इस ऑप्शन में रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है पूरा, तो दिस विल मेक इट करेक्ट. ओके, यस और नो? थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आर वेरी वेरी सिमिलर, तो इसको सिमिलर ना रखो, थोड़ा सा डिफरेंट कर लो. ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट. ये दोनों सिमिलर हैं, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन, तो आप किसी भी एक को एलिमिनेट करते, दोनों ही गलत है. ठीक है, चलिए सो मूव टू द नेक्स्ट वन.
And next question on your screen is right here, and it is very, very, very much important question. So I want to know that how can you solve this question out? You have a 2 minute to solve this question. You have 2 minutes, complete 2 minutes to solve this question. Please be fast. Solve this fast. Comment the answer if anybody get. Comment the answer fast if anybody gets. Comment it fast. Comment. Nobody. चलिए मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. जस्ट आई एम टेलिंग. देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप किसी फॉर्मूले से या फिर वो किसी कंसेप्ट से करेंगे, फॉर्मूले से करेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर एक सिमेट्रिकल फॉर्म फॉलो नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर एक एनोनिमस सीरीज है, मतलब कुछ भी सडन सीरीज आपको बना के दे दी और अपने मन से चल रहा है. तो अब आप क्या करेंगे, देखो मैं अगर ये कह दूं कि p की वैल्यू अगर 1 लेट कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर दिस विल बिकम 1 + 1 + 1 समथिंग समथिंग समथिंग, ये आने लगे f to infinite. मैं कहूंगा आप इतने को तो सॉल्व कर सकते हैं ना. 1 प्लस दिस विल बी व्हाट, √4 a का मतलब 1 + 1 + 1 अपॉन 2 ऑल्सो. 5 + 1 is 6. So √4 + 1 is 5. Sorry, √5 + 1 upon 2. So by taking LCM, you will say √5 + 1, and the final answer will be √5 + 3 upon 2. और p की वैल्यू 1 पुट करने पर किस ऑप्शन का आंसर हमारे इस आंसर से मैच हो रहा है ये देखिए. आर यू ऑल डन? इस क्वेश्चन को करने का जो सही तरीका है वो यही. अगर आप किसी अन्य तरीके से जाने का प्रयास करेंगे तो आपको रिपीटेड सीरीज नहीं मिलेगी. आप x वैल्यू लेट कर लेंगे, बट आपको रिपीटेड सीरीज ना मिलने के कारण वो x वैल्यू लेट नहीं की जा पाएगी, है ना. x वैल्यू का कोई यूज नहीं हो पाएगा. होपफुली यू आर वेरी क्लियर नाउ एंड मूव अहेड. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजीली सॉल्व्ड बाय यू ऑल. तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन ऐसा. ये तो आप कर सकते हैं. लेट द आंसर इज x. Because of after these two terms, all the series are repeating mode. All the series are in repeating mode. Now you will say √2 into cube root of 4 into x is equal to x. By eliminating this root, you will have this x square by 2 cube root of 4x. By eliminating cube root, you will say the x to the power 6 upon 8 is equal to 4x. Yes or no? 8 for the 32x, x to the power 6. By eliminating x, this to 1, and x to the power is 5 here. 2 to the power 5 is equal to x to the power 5. And what is the value of x will be? The x value will be 2. So the final answer will be 2. Are you all getting, buddy? हाँ जी, बताइए समझ में आ रहा सभी को? कितनी देर बाद कौन ज्वाइन होता है भाई? अमन,
मतलब आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलती होंगी तो भी ऐसे ही होता है क्या? इतने स्टूडेंट आते हैं क्या आपकी क्लासेस में? हाँ जी, कॉलेज क्लासेस जो चलती हैं या फिर ये लोग प्लेसमेंट को इतने हल्के में ले रहे हैं? बेटा इंजीनियरिंग करी थी तो किस लिए करी थी? सभी लोगों ने इंजीनियरिंग सिर्फ इसलिए तो करी थी कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिलेगी बढ़िया। तो उस जॉब को पाने के लिए आपको एक लास्ट स्टेप ही तो उठानी है, और लास्ट स्टेप में अगर आप वीक पड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा बताइए, है ना? प्लेसमेंट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अपने आप पढ़ लेते हैं, अपने आप पढ़ना बिल्कुल ठीक है, लेकिन कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उसका फायदा उठाइए। बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आप अपनी तरफ से जो पढ़ेंगे और एक ट्रेनिंग अंडर गाइडेंस में जो पढ़ेंगे उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन द गाइडेंस और सेल्फ स्टडी। There is so much difference. You cannot believe this, but there is so much difference. After attempting a written test examination, you will realize this. काश हमने पढ़ लिया होता। नहीं, ऐसा नहीं है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। जितने देखो 100% एफर्ट लगाने होते हैं, 100% एफर्ट। अब 100% एफर्ट लगाने के लिए आपको 4 साल से पढ़ रहे हैं, शायद आप लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं सभी, तो 100% एफर्ट लगाने के लिए आप लोग लास्ट 4 ईयर से पढ़ रहे हैं। 4 ईयर से पढ़ रहे हैं तो एक महीने की ट्रेनिंग और सी, है ना? एक महीना अगर आपको सिलेक्शन दे सकता है तो व्हाई यू कांट ज्वाइन दिस ट्रेनिंग सेशन? ओके, सो 3 + 4 into under root 3 + 4 into under root 3 + 4 plus under root 3, ये दिस टाइप्स ऑफ सीरीज आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। ये आते हैं हमारे अपर लेवल एग्जाम्स में, जैसे जैसे कैट की बात करें, सीडीएस की बात करें, एफकेट की बात करें, टेक्निकल एग्जाम्स की बात करें, उन क्वेश्चंस में ऐसी सीरीज आपसे पूछी जाती है। बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट सीरीज एंड दिस सीरीज। आपको ये लग रहा होगा सर ये तो फर्स्ट सीरीज जैसी है, बट हियर दिस 4 इज एक्स्ट्रा इन दिस सीरीज। This 4 is little bit extra in this series. Yes or no? This is simply same to the first series. Yes or no? तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर ये सिंपली सेम टू द फर्स्ट सीरीज है तो फर्स्ट सीरीज का जो फॉर्मूला था वो एक्चुअली, अब मैं आपको असलियत दिखाने वाला हूं उस फॉर्मूला की कि वो फॉर्मूला एक्चुअली था क्या। तो आपने ये कहा था कि 4a + 1 ± 1/2। यस और नो? यस और नो? ये फॉर्मूला था सभी का। अब मैं आपको Yes, बताता हूँ इस सीरीज का एक्चुअल, इस फॉर्मूले की असली पहचान जो है वो क्या है। तो बच्चे देखो, एक्चुअली पता है क्या होता था? होता ये था कि जब ये सीरीज कुछ ऐसी होती थी √7 + √7 + √7 + √7 ऐसा कुछ होता था ना, तब ये 1 जो है वो हिडन रूप से यहाँ पे रहता था, हिडन हिडन रहता था। तो इसलिए ये 1 यहाँ पर हमने लगा दिया होता था। अब ये 1 भी नहीं है एक्चुअली, ये b² - 4ac होता था ना, b² - 4ac/2a। तो b² नहीं, ये एक्चुअली 1b² हुआ करता था, और ये प्लस माइनस b, ये एक्चुअली आपने शायद फॉर्मूला देखा हो श्री धराचार, तो -b + √b² - 4ac। तो बेटा 4ac का टर्म तो आपका ये रहा, जो कि नेगेटिव साइन होने की वजह से वो पॉजिटिव हो गया है, एंड b² का टर्म आपका ये रहा, एंड +- b वाला ये टर्म ये रहा। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगेगा। एक्चुअली क्या है कि ये जो वैल्यू रखी है ना, ये इस सीरीज को फॉलो करेगी ऐसे, a + b इंटू a + b इंटू। बात क्लियर हो गई क्या? तो ये फॉर्मूला अभी इनकम्प्लीट था, अब जाके कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस क्वेश्चन को जैसे चाहे वैसे मोल्ड करें, इसको माइनस करते तो ये माइनस का एक्सेप्टेड होता। So you can easily solve this question by this trick, or you will say 3a, तो a will be 3, तो √12 सॉल्व कर रहा हूं मैं भाई, देख लो, √12 and plus b² is what? So b² is what? 4 is the value of b² is what? 16, and plus, make it plus because the series is in plus, and b is what? 4/2. So when you solve this equation, 16 plus 12 is 28. √28 is what? 2√7 plus 4/2, and by dividing separately you will say this will be 7 and this will be 2. So √7 + 2 will be the correct answer of this question. Are you all okay with this? Are you all okay with this formula or this concept? yes, sir. Okay.
Everybody make me confirm by typing D in the comment box. Make it confirm. Very good. Very good, very good, very good. Okay. Okay. ठीक है, सभी लोगों का कमेंट बॉक्स में कंफर्मेशन आना चाहिए, ठीक है. If you all are very serious for the class, then make it confirm seriously. अब यहाँ से हमारा एक सीरीज सीक्वेंस तैयार होता है कंप्लीटली. अगर ये नंबर कोई एक्स्ट्रा भी पुट करते हैं तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन ऐसा एंड कमेंट द राइट आंसर फास्ट. A, B, Reshu commit A, Prachi commit B, Aman B, okay, Priyanshi B, Reshu, please check it again. A, B, सभी का B आ रहा है ना? So Reshu, please check it again. You commit a mistake over there. So आपको पता है फॉर्मूला क्या होगा? 4A plus B square plus minus B upon 2. 4A, A is what? 154. 616 plus B square is what? 3 plus 9 plus 3 upon 2. So this will be 625. This will be 25 plus 3 upon 2. This will be 28 upon 2 will be 14. अब मुझे ये बताओ, आपको एक राज की बात और बताऊं क्या? आपको एक राज की बात और बताएं? एक राज की बात और बताएं क्या? आप इस क्वेश्चन को विदाउट दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस इजीली, वेरी इजीली. Without using this formula you can solve this types of question very easily. बताएं क्या राज की बात? बोलो हाँ. सर ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. हाँ सर बताइए. बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे. बाकी लोग नहीं चाह रहे हैं, बताएं, है ना? चलिए सुनिए. तो राज की बात ये है, देखो एक बात क्या होता था जब 20 यहां होता था, तब क्या होता था? टेल मी, क्या होता था? तो आपसे ये कहा जाता था डायरेक्ट ऐसे फैक्टर ढूंढो जो 4 into 5 मतलब हैविंग डिफरेंस 1 हो. क्यों? बिकॉज ऑफ 1 इज हाइडिंग, बिकॉज 1 इज हाइडिंग हियर. यस और नो? 1 is hiding here, then we will make a factor having difference 1. So if it is here 3, then we'll make a factor having difference 3. So 11 into 14, this will make 154, and you will say very easily the 14 will be the correct answer. Yes or no? Yes or no? अब बताओ फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, जरूरत नहीं है. लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, इसमें ये चीज नहीं रखती थी. क्यों? क्योंकि 1 3 के फैक्टराइज नहीं होंगे, तभी तो इसका आंसर रूट फूड में आया था, एक परफेक्ट वैल्यू में नहीं आया था. तो परफेक्ट वैल्यू में जब होती है बात, तभी होती है. जैसे अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी फैक्टराइज नहीं होंगे, मतलब रूट में ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो जैसे ही आपको दिख जाए ऑप्शंस रूट में, इट मीन इट विल बी सॉल्व्ड बाय ओनली फॉर्मूला. यस और नो? So this will be solved by formula. Root 4a मतलब 20 minus plus b square minus plus b square. This will be square. Okay, and minus b, it means minus 2 upon 2. So root 24, it means 2 root 6 minus 2 upon 2. So root 6 minus 1 will be the correct one of this question. Yes or no? I will okay. अब आप ये अगर ये चाहते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं सर जो टूटते हैं, वो एक ही क्वेश्चन आपने दिखा के रह गए, तो मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं ऐसे मेक कर सकता हूं. जैसे मैंने मान लो 63 प्लस 2 रूट 63 प्लस 2 रूट 63. अब आप बताइए इसका आंसर ओरली बता सकते हैं ना?
इसका आंसर तो ओरली बता सकते हैं ना. What will be the 9. bloody right answer of this? 9. Yes, very good. Because here is 2 and we can make the factor of 63 in the difference of 2. So if it is plus, then answer will be 9. Is it all okay? Again, a very wonderful question on a screen. 88 minus 3. 88 minus 3. 88 minus 3. What will be the 8. bloody right answer? Yes, it will be 8. Because it is 8 and 11 having difference 3 and 3 will be here. If it is here 4, then you will go with the formula. If it is here 4, then you will definitely go with the formula. Because the answer is in root, not in a perfect value, not in an integer value. Okay. I ask you one thing. I want to ask you one thing. So tell me if anybody knows. Okay. If anybody knows, then please ask me something. Oh, tell me something. Okay. What is 0? I am simply telling you what is 0. I am asking you that. What is 0? ऐसे क्वेश्चन आपके कंपनीज में बहुत बार आए हैं, लेकिन बहुत पहले आए हैं, लेकिन अब इनका जमाना चला गया. बट ये एक बेसिक नॉलेज पर बेस्ड है. व्हाट इज 0? क्या कहते हैं? 0 क्या है? कौन बताएगा? 0 is infinite number. 0 is Infinite number. इनफाइनाइट नंबर. चलिए, एक ऑप्शन आपने बना दिया, इनफाइनाइट. इफ इट इज, अगर कोई भी इन भाई के साथ है हमारे, तो आप ए टिक कर दें. और बाकी और कोई अगर एनीवन डिफरेंट फ्रॉम दिस इनफाइनाइट बोलना चाहता है तो बताइए. सर, रूट ऑफ एनी इक्वेशन. इनफाइनाइट रूट ऑफ एन रूट ऑफ एनी इक्वेशन. रूट ऑफ एनी इक्वेशन. आप बड़ा टेक्निकल जवाब दे रहे हैं भाई. चलिए, और कोई हमारा साथी, एनीवन एल्स? 0 is a whole number. 0 is a whole number. Means the option are ready for you. Whole number. And now, anyone else? Anybody? Anyone else who can tell me the right one? Mid of the infinite. Oh, mid of the infinite. चलो, ये भी ऑप्शन लिख देते हैं. मुझे 0 के नेचर, मतलब ये आप लोग क्या बता रहे हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोग क्या बता रहे हैं, मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही ये चीजें. ठीक है. मिड ऑफ द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, रूट ऑफ एन इक्वेशन, होल नंबर. चलो, ये आपके ऑप्शंस में हो सकता है, क्योंकि जब भी ये आता है ना 0, तो ऐसे देते हैं ऑप्शंस. होल नंबर, ठीक है, और इवन नंबर, और ऑड नंबर, और प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर, और इंटीजर, और मतलब ऐसे ही कुछ कैटेगरी में डाल के देते हैं. आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या बता दिया मुझे. चलिए, और बताइए कोई. एनीवन एल्स हु कैन टेल मी द राइट आंसर? What is 0? Asking you a simple, very, very, very simple question. What is 0? A null value. Oh, ये आप C++ में चले गए. Null value. चलिए, 0 को सिर्फ 2 नामों से पुकारा जाता है. सिर्फ 2 नामों से. वो 2 नाम में से एक नाम तो आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है, लेकिन एक नाम अभी गायब है. एक नाम आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है. चलिए, आप बता दीजिए मुझे कौन सा नाम है वो. आउट ऑफ दीज 11 कोई एक नाम 0 को इंडिकेट करता है, और कोई एक नाम अनदर नेम which can define the 0 as well. Can you please tell me what will be that value? What will be that number? What will be that name? Nobody. Oh my God. Please make this correct. आपका अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो एप्टीट्यूड बहुत लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहने देगा. The 0 is an even integer. The first correct, a perfect answer of what is 0
is an even integer, and the second one is it as an neutral integer. So I'm asking about the even integer all. That's it. अब जिसने ये बोला था कि 0 is an whole number, देखिए आपका आंसर मुझे काफी हद तक पसंद आया, क्योंकि यहाँ पर लोगों को कमिट होना चाहिए था, यहाँ तक तो लोगों को पता होना चाहिए कि 0 होल नंबर आप कमिट कर सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 0 is not a only whole number. Okay, when 0 is combined with the natural number, then it becomes a set of whole number. Okay, when 0 combined with the natural number, the 0 in with natural number, then you will say the number will be in a set of whole number. Any single number cannot be said whole number. मतलब किसी भी एक सिंगल नंबर को आप ये बोल ही नहीं सकते कि वो होल नंबर है, ये आप गूगल कर लें। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखते कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। एक क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, what is the minimum, what is the smallest even integer? What is the smallest even integer? या फिर find out the smallest even integer. Tell me if anybody knows. मैं ये चेक कर रहा हूं आप लोगों को कितना मैथ्स अभी आता है, मतलब कितना आप बारीक ज्ञान रखते हैं मैथ्स का, क्योंकि नंबर सिस्टम अगर नहीं पता होगा तो फिर सारा मैथ पढ़ना बेकार ही है। If anybody knows, then please tell me what is the minimum value, what is the smallest even integer. Tell me fast. देखो बताओगे तो मैं आपके कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। जैसे 3 लोगों ने आंसर दे दिया, निधि, वंशिका एंड सात्विक एंड रिशु, 4 लोगों ने आंसर दिए, बट बाकी के 12-13 लोग अभी भी बैठे हुए हैं। भाई ऐसे ही बैठे रह जाओगे, कंपटीशन में दौड़ोगे नहीं तो क्या होगा, डेड एंड पे बैठे रह जाओगे, देखते रहोगे इन लोगों को आगे बढ़ते हुए। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, प्लीज अभय समथिंग। और टेल मी, देखो आप कहना सीखो, जो भी आता है आप कहना सीखिए, जो भी आता है आंसर देना सीखिए, दैट्स इट। ओके, सो most of the people commit 0 or 2. Most of the people commit 0 or 2. As I told you, 0 is the even number, but 0 is the not the smallest even integer. A person told me Chirag Sharma is an infinite, but infinite is in negative. It is the correct answer. आपका आंसर बिल्कुल मान्य होगा, but infinite is in negative. Minus infinity is the smallest even integer, buddy. Even number नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, आपको शायद ये पता ही नहीं होगा, बिकॉज नंबर सिस्टम की थोड़ी बेसिक नॉलेज कमजोर है। तो गूगल कीजिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर, तो गूगल विल ऑलरेडी टोल्ड यू गूगल विल ऑलरेडी टेल यू कि माइनस इनफिनिट वाज द स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर। गलत कह रहे हैं आप, हाँ देख लो भाई, ध्यान रखो इस बात का, नेगेटिव रह गया सर। गूगल कीजिए इन बातों को। हम लोग जब पढ़ाते हैं अपने सेशंस में एक एक चीज खोद कर निकालते हैं। मतलब नंबर सिस्टम मेरा, देखो मैं आपको बताऊं कि मेरा नंबर सिस्टम 3 दिन तक चलता है, 3 दिन तक मैं सिर्फ यही बात करता हूं आप लोगों से। और कोई हो इस क्लास में तो बताइए प्लीज इन्हें, सीआरटी बैच में जब नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं हम लोग 3 दिन तक डिस्कशन करते हैं। एक भी डाउट अगर रह गया तो आगे जाकर बहुत दुखदाई होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में बहुत गलत नॉलेज है लोगों को, और मैं जानता हूं अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप गलत आंसर ही देंगे, डेफिनेटली यू विल से रॉन्ग। चलो पूछ लेता हूं, इफ एनीबॉडी कैन टोल्ड मी द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स एंड प्लीज टेल मी प्राइम नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, प्लीज डिफाइन द प्राइम नंबर, प्लीज डिफाइन द प्राइम नंबर। गूगल में 2 नहीं बता रहा बेटा, मैं गूगल करके दिखाऊं आपको। Sir, any number which is divisible by 1 and the number itself. Okay, very good. I expected that.
Yes. Ayush, tell me the right. Ayush, only the person. Tell me the right definition of. Tell me the right definition of prime number. But अब देखो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो सब ये सोच रहे होंगे सर प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जो एक से कट जाते हैं और जो खुद से कट जाते हैं इटसेल्फ। तो बेटा अगर आप ऐसी डेफिनेशन बोलते, ये क्या है, डेफिनेशन का पार्ट सेकंड है। आपने जो प्राइमरी डेफिनेशन थी वो तो बोली नहीं है। A number who have only two factors, a number having only two factors, that's called prime number. अगर आप ये डेफिनेशन किसी एग्जामिनर के सामने बोलेंगे ना तो वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा व्हाट इज वन, so you will tell ki what is not the prime number except one. I said this definition. तो ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि वन जो है वो वन प्राइम नंबर नहीं है। yes or no? A number having only two factors, और टू फैक्टर्स वो कौन कौन से, एक तो वन एंड एक इटसेल्फ, ये बात आती है, इसे कहते हैं, ये परफेक्ट नॉलेज आपकी समझिए। प्राइम नंबर इज व्हाट इज द प्राइम नंबर? If anybody is asking you the definition of prime number, then please tell him the number only having two factors. That's it. That's called prime number. One. What about one? तो one के क्या two factors हैं? नहीं है, not the prime number. Two, yes, it is the prime number, smallest prime number. The two is the bloody smallest prime number, and two is the only prime number which is even. Two is an only prime number which is even. 3 is the smallest odd prime number. Yes or no? So make this correct. और देखिए अगर कोई ये कहता है, गूगल भी ये कहता है, तो मैं कहूंगा गूगल भी गलत है भाई। क्यों? सुनो, गूगल पे भी जानकारी अपलोड किसने की है? इफ 2 is an smallest even number, तो बेटा स्मॉलेस्ट नंबर की परिभाषा बताओ, स्मॉलेस्ट नंबर की डेफिनेशन बताइए। कौन बता रहा है डेफिनेशन? ये तो बहुत सिंपल है ना। What is the definition of smallest number? वो even number, sorry, smallest even number की definition बताइए। Define the definition of even number. Please tell me. आप शायद उसे सही से चेक नहीं कर पा रहे हैं गूगल पे। आप गूगल का स्टेटमेंट पढ़िए पूरा, एक पूरा सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है नीचे the negative infinite will be the smallest even integer, even number. नहीं बता रहे? अरे भाई इवन नंबर की डेफिनेशन होती है which is divided by 2 and 0 is divided by 2 as well. That is the prime, that is the even number. And 0 अगर डिवाइड हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है तो इट मींस माइनस इनफिनिट में भी कोई वैल्यू होगी जो 2 से डिवाइड होती है, कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। वैल्यू इज कैन बी नेगेटिव और इन पॉजिटिव। स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर माइनस इनफिनिट, स्मॉलेस्ट ऑड इंटीजर माइनस इनफिनिट आल्सो। अब मुझे देखो एक सवाल कई तरीकों से पूछा जाता है, सवाल कई तरीकों से पूछा है। पूछते हैं स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर। अब बताइए आंसर क्या है? स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर कह रहा है छोटी से छोटी नेगेटिव ना होने वाली सम संख्या। व्हाट विल बी द ब्लडी राइट आंसर? अभी भी आप लोग गलती कर रहे हैं, प्रियांशी एंड आयुष, आप अभी भी गलती कर रहे हैं। आंसर इज 0। नॉन नेगेटिव है, 0 इज अ नॉन नेगेटिव बड़ी। यस नो? नो 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 नो, नॉट द इनफिनिट, नॉट द इनफिनिट इशू, इनफिनिट नहीं है। नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर बोला है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं जाना है। तो नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर इज व्हाट इज न्यूट्रल इंटीजर? न्यूट्रल इंटीजर इज 0। न्यूट्रल इंटीजर इट मींस there is not the positive charge or not the negative charge on that. 0 is a neutral integer, so called उदासीन पूर्णांक। इसे कहते हैं उदासीन पूर्णांक। इस पे ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, इज ए न्यूट्रल। हाउ कम देन इट्स पॉजिटिव? हाउ कम देन इट्स पॉजिटिव? मैंने कब कहा कि ये पॉजिटिव है? मैंने तो कहा ये नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव है। दैट्स इट। चलिए नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे, लेकिन
चलो बात करते हैं आगे, आगे बढ़ाएं। इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी, प्लीज आस्क मी इफ एनी डाउट इन द नंबर सिस्टम और नंबर वैल्यूज, प्लीज आस्क मी about the prime numbers, about the whole numbers, about the something 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 whatever. मुझे ये बताइए, चलो एक क्वेश्चन और मजेदार। चलो पहले इनको अपन कंप्लीट करें, फिर अपन नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आज अपने पास टाइम है, पहले अपन इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है वो सीरीज आपको बिल्कुल सेम दिख रही है। 10 प्लस रूट 3, 10 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 10 माइनस 3 इंटू अंडर रूट 10 प्लस 3। अब देखो ये अल्टरनेट सीरीज में आ गया। आपको याद है वो वाला क्वेश्चन, रूट 13 माइनस रूट 13 प्लस रूट 13 माइनस रूट 13, याद है? इसका फॉर्मूला बताओ बेटा, इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? आई टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ दिस सीरीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू what was the formula of this, please tell me. अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस माइनस 1/2। अब देखो -3 पता है क्यों था, और -3 के बगल में क्या होना चाहिए, तो -3 के बगल में आप धीरे से b लगा दो, b स्क्वायर, और यहां लगा दीजिए आप b। इज इट ओके? ये बस ये मिसिंग है। अब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दैट्स इट। तो मैं कहूंगा देखो अब आंसर कितना है, तो 10 इंटू 4 40 माइनस 3 इंटू b स्क्वायर इट मींस 3 स्क्वायर इज 9 एंड प्लस से स्टार्टिंग हो रही है सीरीज की, एंड प्लस 3/2, तो 49 3 जा 27 इट मींस माइनस 27 माइनस होगा 40 में से रूट 13 प्लस 3/2। द आंसर विल बी सी। Am I correct or not? Are you all done, buddy? Are you all done? Yes, sir. Very good. नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग पे आ गया। नहीं चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं इसके, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें अभी बचे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको एक ब्लैंक शीट पे बना के देता हूं, ठीक है? मैं आपको एक ब्लैंक शीट पे कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी आएगा तो एग्जाम में आप कर लेंगे, ठीक है? अगर कोई मुझसे फुल कंसेप्ट पूछना चाहता है तो देन यू कैन आस्क मी फ्रीली नाउ। सो अनदर रूट सीरीज ऑन योर स्क्रीन राइट हियर। एक रूट सीरीज क्यूब रूट में भी आती है ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7, क्यूब रूट ऑफ 7। ऐसे ही सेम सीरीज मैंने आपको अभी स्क्वायर रूट में सिखाया था, और सेम पैटर्न आपको क्यूब रूट में फॉलो करना है। बताइए क्या आंसर होगा, बताइए 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 जल्दी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगेन 4 रूट सीरीज बना देता हूं मैं, मेरे को कुछ नहीं है, मैं आप कोई सा भी रूट सीरीज बना सकते हैं आप, बस आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। आपके कंसेप्ट अगर स्ट्रांग है तो आप कोई सा भी सीरीज मेक कर सकते हैं, ठीक है? चलिए हाँ जी, देखो क्या करना है, 7 7 7 7। अब तो मैं कहूंगा 7 तो बाहर लिख लो, ऐसे ये 2 बाहर लिख लो। अभी उसमें क्या करते थे, नंबर ऑफ रूट्स काउंट करते, 1 2 3 4, तो 4 है ना, तो आप ऐसे लिख लीजिए। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे करो, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस 1/1/81 ऐसे कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। तो मैं कहूंगा 7 81 इज द एलसीएम, ब्लडी एलसीएम। 3 27 जा, 9 9 जा, 27 3 जा, 81 1 जा। Check this out. 40 upon 7 to the power 40 upon 81. Yes or no? Are you all done? Yes, sir. If this is 4, then make it 4 here, 16 here, and 64 here, and 256 here. 4 to the power extend कीजिए, 256 will be here, and by adding this 4 64 plus 16 80 plus 4 and plus 85. तो 2 to the power this. आपको ये तीनों सम करने हैं ना, 1 ऐड कर लेना इसका, that's it. Are you all okay? चलिए अब one more series on your screen right here. One more series on your screen right here, but
This is a very unique series, very different and very unique series, very different and very unique series on screen now. ये फिक्स सीरीज है एक्चुअली, मैं आपको बता दूं ये सीरीज जब भी आई है वो इसी रूप में, इसी सेम फॉर्म में आई है, ठीक है। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। क्या आप मुझे इस इक्वेशन का जवाब दे सकते हैं, बताइए। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं? अगर आप आज इस सीरीज को सॉल्व कर देते हैं तो आई विल टेल यू, यू विल बी द किंग ऑफ द स्क्वायर रूट सीरीज ऑफ दिस क्लास। You will be the king of square root series of this class. So please comment your answer if you have got the bloody right answer. You have 2 minutes to solve this out. 2 minutes, and take your time and make the series first. Take your time. Two persons committed answer. One is Priyanshi and second one is Satvik. Satvik, your answer is very correct. But please tell me how you can solve this. How you solve this question? Yes, very right, very right. So mathematical equation. Mathematical equation, how? One By plus letting it. Okay. so one plus n, then under bracket n plus 2, like that. Okay. So what time लग गया होगा आपको? Yes sir, थोड़ा सा. है ना, थोड़ा फास्ट किया होगा आपने, but you successfully did it. सर Very good. उसमें सर उसका वो आता है ना n सीरीज का सॉल्यूशन n. हाँ जी, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सुनिए सुनिए मेरी बात। देखिए रूट ऐसे करेंगे तो आपको टाइम लगेगा, लेकिन आंसर तो पा लेंगे। बेसिक सीरीज ट्रेडिशनल मेथड इज ऑलवेज वर्क। यस और नो? ट्रेडिशनल मेथड विल ऑलवेज वर्क। तो ये तो होना ही है, और आपने इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दिया। वेरी गुड, एंड यू आर द किंग ऑफ दिस सीरीज। ओके, एंड अंजलि कुमारी आल्सो। नाउ so one thing I tell you something. One thing I tell you something. When this types of series will come, then you will make your answer by only these two numbers. You will make your answer by only these two numbers until 3. Then 3 will be your answer. But how? अब आप कहेंगे सर ये क्या मजा है, ये तो आप रटा रहे हैं। तो मैं कहूंगा रटा नहीं रहे बेटा, सॉल्व कर इसको। एक्चुअली क्या है, आपको अभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मोड में पढ़ रहे हैं, है ना। तो कॉम्पिटिटिव मोड में आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़े से साइड रखकर आपको शॉर्ट ट्रिक्स पे प्ले करना होगा। एंड नाउ अगर मैं आंसर 3 कहता हूं, इट मींस 3 इज इक्वल टू व्हाट? √9। यस और नो? 3 इज इक्वल टू व्हाट? √9। अब मैं आपसे ये कहता हूं, मुझे बताइए √9 को मैं कैसे प्ले कर सकता हूं। तो आप कहेंगे √9 को मैं 1 + 2 × 4 करके प्ले कर सकता हूं। यस और नो? यस और नो? कर सकता हूं। फिर मैं ये कहूंगा कि
अब √4 2 into 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहिए 1 into 2। अब मैं √4 को कुछ ऐसे नहीं लिख सकता, √16 बोलो। फिर मैं √4 को फिर 1 + 2, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो √16 को 1 + 3 into 5 नहीं लिख सकता हूं ना। ऐसे ही आप एक्सपेंड कीजिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 + 2 1 + 3 एंड √5 को मैं क्या √25 लिख सकता हूं। √25 को लिखने के बाद 1 + 4 into 6 लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे मूव ऑन करें, क्वेश्चन अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा। यस और नो बड़ी, आर यू गेटिंग? मैंने आपको क्वेश्चन से आंसर तक ले जाया है, क्वेश्चन से लेकर आंसर, क्वेश्चन से आंसर तक लेके गया हूं मैं आपको, और आप क्वेश्चन को प्रोसीड करके आंसर तक लेके गए थे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, 2 लोगों ने आंसर कमिट किया, वेरी गुड, वेरी वेल डन। सो एंड नाउ द अगेन a very simple term on your screen is right here। आपने देखो इस टाइप के सवाल सभी ने देखे होंगे बड़ी, आप में से कितने लोगों ने इस टाइप के सवाल देखे हैं ये बताइए। कि ऐसा एक लेटर सम हमसे पूछा जाता था, याद है आप सभी को? एक लेटर सम ऐसा कुछ पूछा जाता था हमसे, फिर हमसे डिफरेंट साइन पर भी पूछा जाने लगा कि 1 - 1 - 1/2 - 1/, ऐसा कुछ जो भी व्हाटएवर है ना। मान लो पूरा ही नेगेटिव होता तो देन व्हाट विल डू। क्या ऐसे क्वेश्चन किसी ने देखे हैं पहले कभी किसी ने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन? कैट में बहुत पूछे गए थे, 2015-16 तक ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कैट एग्जाम में, सीडीएस एग्जाम में। बट आफ्टर दैट लास्ट क्वेश्चन था 2018 में सीडीएस में एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। बट उसके बाद 2019, 20, 21 तो अभी हुए ही नहीं है फिलहाल, तो कोई क्वेश्चन इसमें नहीं आ पाया है ना। क्या आप में से किसी ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? किसी ने देखे हैं ऐसे क्वेश्चन? बताइए। मैं इन क्वेश्चंस की शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहा हूं बेटे। देखो लॉन्ग ट्रिक से तो सभी सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन इतने टफ नहीं है कि आप लॉन्ग ट्रिक से भी सॉल्व ना कर पाए, ठीक है। लॉन्ग ट्रिक आई मीन लॉन्ग मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, तो आप सब सॉल्व कर सकते हैं। बट बाय दिस शॉर्ट ट्रिक यू कैन इजीली ट्रैक दिस क्वेश्चन आउट बाय दिस। तो देखिए 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 बटे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, की जल्दी पढ़िए। नाउ देखिए भाई ध्यान दें, मैं कुछ और भी सिखाऊंगा अभी आपको थोड़ी देर। आज का सेशन थोड़ा सा चलने दीजिएगा अभी, क्योंकि अभी तो 1 आवर ही कंप्लीट हुआ है। आधी घंटे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं नया, बस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। 1/2 मैं कहता हूं, देखो ऐसा क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना तो बच्चे क्या करते हैं, 1 + 1/2 1 + 1/2 ऐसे करके सॉल्व करते हैं। अब वो क्या करते हैं, नॉर्मली अगर जाएंगे तो 2 × 2 × 1 is 2 + 1 is 3/2। अब ये 2 जो नीचे रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 1 + 2/3 कुछ ऐसा हो जाएगा। यस, फिर 3 × 1 = 3 + 2 is 5/3, फाइनल आंसर इज 5/3 हो जाएगा। यस नो, यस और नो। सो मैं ये कह रहा हूं कि आप देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन करो ना, क्या करा करो, लास्ट वाला जो टर्म है ना 1 और 2 वो ऐसे लिखो। कितने स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं, जितने साइन होंगे उतने स्टेप्स होंगे, तो प्लस और प्लस 2 स्टेप्स, तो आप 2 स्टेप सामने रख लीजिए ऐसे, ठीक है। अब 2 को 1 में ऐड कर दीजिए 3 को 2 में ऐड कर दीजिए 5, एंड लास्ट अपॉन सेकंड लास्ट विल बी द राइट आंसर। दैट्स इट, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म। जब आप डिवाइड करके जाते हैं ना पूरा, तब आपको माइंड कंसंट्रेशन बहुत रखना होता है कि कौन सा नंबर किधर कहाँ प्ले होगा ऐसे वैसे। जबकि इस टेक्निक से अगर जाओगे तो कहीं कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। 1 और 2 इधर है, 1 और 2 इधर लिखिए, 1 2 3 कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 प्लेसेस विल बी हियर। ये जरूर बना के रखिए बेटा। 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13 13 8 13 8 21, then 21/13 will be your correct answer of this question. Yes or no? Everybody done? अब देखिए जैसे यहां पर देखिए, अगर साइन चेंज है, जैसे 1/1 और 2 है,
तो बेटा ध्यान रखना सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट। अब माइनस है तो माइनस कर रहे हैं, 2 - 1 इज +1। रिमेंबर दिस थिंग, +1 +1 - 2, 1 - 2 इज -1, -1 -1 -1 माइनस +1। अब मुझे बताइए क्या होगा, -2 एंड -2 -1, तो दिस विल मेक इट +1, it will become -1. So the final answer will be -1 upon -2. The answer will be 1/2. Are you all done? Are you all done, buddy? Are you all getting my point? Second में से फर्स्ट माइनस करना है, ओके? थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सॉल्व करते हैं। 1 and 3, how many steps are there? 1 3 2 3 4 5, these 5 are the steps. अब देखिए 1 2 and 3 steps आपकी नेगेटिव है, तो 3 - 1 is 2 + 2, 2 - 3 is -1, -1 minus +2 is -3, and now it is plus, so -3 plus -1 is -4, and -4 minus -3, it's -4 plus 3 is -1. So -1 upon -4 will be the correct answer. Are you all right, buddy? Are you all right with this? But आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी यहाँ पर ऐसे भी नंबर पूछ दिए जाते हैं, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 2 दे दिया, अब ये 3 दे दिया या 4 दे दिया, तो अब क्या करेंगे, या फिर ये 3 दे दिया तो अब क्या करेंगे, मतलब कोई भी नंबर आ जाए तो भाई आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई कैसे, वो मैं आपको बताऊं क्या, नहीं रहने दो, वो अभी नहीं बात करते हैं, अभी बात करते हैं टॉपिक, कोई एक नया टॉपिक लेते हैं उस पर बात करते हैं, ठीक है? चलिए, तो द टॉपिक ऑन योर स्क्रीन राइट हियर, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने नहीं है, एंड द टॉपिक इज नाउ एपी एंड जीपी सीरीज। अभी हम बात कर रहे थे सीरीज की, बट अब बात कर रहे हैं सीरीज एपी जीपी, ठीक है? अब बात कर रहे हैं सीरीज में एपी जीपी सीरीज। सो लुक एट दिस सीरीज। तो देखिए एपी और जीपी सीरीज के बारे में आप सभी ने शायद बचपन में पढ़ा होगा। एपी इज व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड द जीपी इज व्हाट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस और नो? So arithmetic progression is what, when that series comes with that same difference. Yes or no? When a series comes in a same difference, just like even number की series जो होती है, odd number की series होती है, या फिर किसी n का मल्टीपल, n का कोई टेबल हो, तो वो ये सब जो होते हैं वो हमारे AP series होते हैं with the same difference. If first term is a, then the second term is a plus b, and third term is a plus 2d, fourth term is a plus 3d. समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी नंबर लेट कीजिए, जैसे 5, अब आपको एक सीरीज बनानी है 3 3 के डिफरेंस, मतलब 8 + 3 is 11 + 3 14 + 3 17, so you can make this series by this term. अब आपसे ऐसे ही ये सवाल बहुत अच्छे एग्जाम तक में आता है, बताइए इस सीरीज का 89th टर्म क्या होगा? What will be the 89th term of this series? तो nth टर्म निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना होता है, वेयर a is the first term which is 5, n मतलब 89th सीरीज निकालनी है -1 into d is the common difference, it means second minus first will be 3. So this will be already knew by all of you, but I am not talking about this, I'm not talking about this simple term, okay? I'm talking about what, please wait for that. 8 3 24, 8 3 24, so 264, okay, plus 5, 269 will be the 89th term of the series. Yes, got it? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्लियर, ये बताओ, ये बात क्लियर है सभी को? इतना तो सभी को आता है, इतना तो सभी को आता ही होगा पहले से, nth टर्म निकालना सीरीज का, है ना? चलिए, समेशन निकालने के लिए आप दो चीजें यूज कर सकते हैं। देखिए समेशन के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया n/2 2a + n-1 into d। अदरवाइज मैं सीधे कह सकता हूं, जब भी एपी सीरीज होती है तो फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 into n। तो ये क्या होता है कि एवरेज निकालने का तरीका होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, दिस इज द एवरेज, एंड बाय मल्टीप्लाइंग n you will get your sum of the n terms. Okay, now so आपको शायद इन सब सीरीज से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब जो है वो इन सीरीज से है। ये है आपके जो एग्जाम में आती है, ये है वो।
अब इन सीरीज को देखो एपी जीपी में कंसीडर भले ही करते हैं, लेकिन इनको हम सक्सेसिव सीरीज कहते हैं। इसके बाद मैं आपको देखो थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ये सीरीज आएंगी आपके आगे, ठीक है, ये सीरीज आपको बहुत टफ लगेंगी लेकिन होंगी बहुत सिंपल। मैं आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे करना है, आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर लीजिएगा। फिर मिसलेनियस सीरीज आएगी, फिर सम ऑफ द रेसिप्रोकल सीरीज आएंगी। ऐसी रेसिप्रोकल सीरीज को आप यूं ही बना लेंगे। और मैं आपको बताता हूँ देखो कैसे कैसे किस किस क्वेश्चन में क्या क्या आता है। देखो ये सीरीज के टर्म जो है वो बहुत टिपिकल है, बहुत टिपिकल वे में सॉल्व होते हैं, लेकिन यूं सॉल्व कर लेता मैं, ठीक है। 15 टर्म तक ले जाना है, मतलब 15 टर्म भी निकालना है और फिर सीरीज का सॉल्यूशन भी करना है ना। दो सीरीज, तीन और दो के ब्लॉक में आ रहे हैं सीरीज, है ना। देखो इस टाइप की सीरीज आती है, तो ये किसके फॉर्म है ये आपको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा टाइम देने के लिए तैयार हो जाइए, जितना अपन कर पाएंगे उतना बिल्कुल करेंगे ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सबसे सिंपल सीरीज, सबसे सिंपल, इट्स वेरी 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 सिंपल। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा के लिए आप है ना चीजों को ऐसा ऑब्जर्व किया करो। ऑब्जर्वेशन अगर बढ़ाओगे ना तो आपका काम बहुत अच्छा होगा। कैसे? याद है आपको बचपन में क्या होता था कि एपी और जीपी सीरीज बहुत टफ होता था हमारे, बोलिए होता था नहीं होता था? एपी जीपी के फॉर्मूले याद नहीं होते थे। और आज अगर मैं आज भी आपको सारे फॉर्मूले बता दूं ना तो भी आपको याद नहीं, याद होंगे ही नहीं, वो भूल जाओगे आप 2 दिन बाद। क्यों? रटने वाली चीज याद ही नहीं होती। इतना तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एपीजेपी जब भी हम पढ़ते थे तो फर्स्ट टर्म का, लास्ट टर्म का और कॉमन डिफरेंस का यूज बहुत अच्छे से होता था। बोलो हाँ या सुनो, ये फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का ही यूज होता था सारे फॉर्मूले में। यस। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं, आप मुझे ये बता दीजिए, आप अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मुझे ये बताइए 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 से लेकर n इज व्हाट आई डोंट नो, n is what? N is the infinite. I don't know the value of exact value of n. So you cannot solve this equation up to n. But you can realize the equation up to n. How? By solving these only two first equation, these first two terms. So solve only these first two terms. 1 minus 1/2 is 1/2 and 1 minus 1/3 is 2/3. By cancelling these two values, you will have 1/3. But मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंसर यहां से बोलेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऑब्जर्व करें कि हो क्या रहा है, व्हाट इज गोइंग टू हैपनिंग। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे 3/4 तो ये फिर कट जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे 4/5 फिर ये कट जाएगा। मतलब फर्स्ट वाली सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है वो जिंदा है, मतलब ऊपर वाला जिंदा रहेगा, लेकिन जो लास्ट टर्म ले रहे हैं, जैसे हमारा लास्ट टर्म ये था, लास्ट टर्म ये था, तो हमारा नीचे वाला जिंदा हो रहा है। तो अब मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो नीचे वाला ऊपर से कटता जाएगा और लास्ट टर्म जब सॉल्व करूंगा तो n-1/n और n-1 यहाँ पे रखा होगा और ये इसको काट देगा और लास्ट वाला n ये आपका जिंदा रहेगा। आप ये बस ये देखो कि फर्स्ट वाले टर्म में ऊपर वाला, लास्ट वाले टर्म में नीचे वाला जिंदा है, दैट्स इट। और कुछ मत देखो। इस टर्म का फर्स्ट और लास्ट से ही आंसर बनना है, ये बात बिल्कुल क्लियर रखो। फर्स्ट और लास्ट से ही आंसर बनना है, ये बात क्लियर रखो। अब जैसे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5 ऐसे करके बात चलेगी। मैं कहूंगा ये सब कटते जाएंगे 84/85 will be considered in the answer and 85 will be here and here will be 1. And by solving this 9 minus 1 is 8/9 and 9/10. अब देखो कहीं से भी स्टार्ट कर दिया उसने 10/11, तो मैं कहूंगा कहीं से भी स्टार्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 तो आंसर में बुक हो गया। अब लास्ट वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, तो 146/147 and the last one will be 147. Yes or no? मैंने ये बात देखो, एक्चुअली क्या है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन नहीं करते और अपने ट्रेनिंग सेशन अपने कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड की जाने वाली ट्रेनिंग को और लोगों को जब अपने दोस्तों को बताते तो ये कहते हैं अरे ऐसी चल रही है, ये चल रहा है, जबकि वो क्लास ज्वाइन नहीं करते। मैंने ये बहुत बार देखा है ना। बहुत सारे कॉलेज के बच्चे ऐसे बस बातें ही करते रहते हैं, तो भाई बातें करने से कुछ नहीं होता। आप जब तक अपना एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक ट्रेनिंग सेशन को, जितने भी ट्रेनिंग सेशन होते हैं देखो सीरियसली लिया, ठीक है। हाँ, फर्दर फ्यूचर अगर कोई और भी ट्रेनिंग सेशन हो उसको प्लीज भी सीरियसली ज्वाइन करें। कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा मिलेगा जिससे आपकी स्किल्स बढ़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा ही आएगा आपके पास, है ना। तो मैं फिर से कहूंगा, देखिए अब ये प्लस सीरीज में है तो मुझे पता है कि इसका आंसर जो होगा लास्ट वाले का ऊपर वाला, फर्स्ट वाले का नीचे वाला आंसर बनेगा। तो n+1/2 क्यों? क्योंकि 2 + 1 3/2 इंटू 4/3
इंटू 5/4। अब देखो कुछ लोग क्या करेंगे 2 से 4 को काट देंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल मत काटना है, ऐसी गलती कभी मत करना, ये अपने आप कटेगा अपने आप, तुम क्यों कष्ट कर रहे हो। फर्स्ट वाले का एक टर्म जिंदा रखो, ऊपर या नीचे कोई भी एक, तो नीचे वाला जिंदा है, इस बार प्लस वाले में नीचे वाला जिंदा है, एंड जब लास्ट पहुंचेंगे तो n+1/n में n रखा होगा और लास्ट वाला जिंदा है। तो ऐसे ही मुझे पता है कि 73 + 1 74 ऊपर रहेगा, नीचे वाले का फर्स्ट वाले का नीचे वाला, लास्ट वाले का ऊपर वाला एंड फर्स्ट वाले का नीचे वाला, यूं चुटकियों में आंसर बन। अगर आप टेक्निक समझते हैं तो चुटकियों में आंसर बनते हैं, चुटकियों में खेल खत्म होते हैं। चलिए आगे बढ़े। 1 तो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बस समझने की कोशिश करो, सिर्फ समझने की। अगर आप इस सीरीज को पकड़ गए तो आपका क्वेश्चन आपकी झोली में। पता है क्या, जैसे मैं जानता हूं, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है ना तो आप यूं कर देंगे, जैसे मैं जानता हूं कि 1 - 1/100 स्क्वायर है, तो मुझे पता है 101/200 होने वाला है, बात खत्म। जैसे क्या होने वाला है, n+1/2n होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता है 1 - 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये a² - b² का फॉर्म है बच्चे। तो 1 - 1/2 और 1 + 1/2 लिख दूंगा, 1 - 1/3 और 1 + 1/3 लिख दूंगा मैं से। अब आप ये बताइए कहां तक गया है, 1 - 1/n और ये 1 + 1/n तक गया हुआ है। आप मुझे बताइए माइनस वाली सीरीज में क्या आंसर था, तो आपने कहा था 1/n इंटू प्लस वाली सीरीज में क्या आंसर था, प्लस वाली सीरीज का आंसर क्या होगा, n+1/2। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको कंबाइंड करके आंसर बताएं, तो आप कहेंगे n+1/2n विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस, दैट्स इट, और नथिंग विल बी सेड बाय द एग्जामिनर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बडी? चलिए, so move to the next, and next will be same 101/200 will be the right answer by solving this। अब देखो ये सीरीज जो है वो 2 से स्टार्टिंग हुई, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब 8 आने वाला, 1 - 1/8, 1 + 1/8 ऐसे करके 1 - 1/23, 1 + 1/23 तक जाएगा। माइनस वाली सीरीज में फर्स्ट वाले का ऊपर वाला, लास्ट वाले का नीचे वाला आता है। फर्स्ट वाले का ऊपर वाला मतलब 7, लास्ट वाले का नीचे वाला मतलब 23, और प्लस वाली सीरीज में फर्स्ट वाले का नीचे वाला, फर्स्ट वाले का नीचे वाला मतलब 8 और लास्ट वाले का ऊपर वाला मतलब 20। 21/23 विल बी द करेक्ट आंसर। आप चेक कर सकते हैं सीरीज को, आराम से आप चेक कीजिएगा और इस सीरीज को बना के देखिएगा, ठीक है। अब देखिए बाकी 2 लोग गायब हो गए, भाई क्या हुआ, खराब चल रहा है क्या सेशन है? ये लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन कर देते हैं। चलो देखो आगे, 1/√1 + √2 प्लस 1/√2 + √3 प्लस √3 + √4। चलिए आप इस क्वेश्चन को चेक करके देखिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। हाँ जी बताइए। Anybody tell me the right one and please tell me। Yes, very good, very good। कौन ने बताया भाई इतनी जल्दी, कौन है ये, कौन है बंदा? प्राची अग्रवाल, वेरी गुड प्राची। तो द राइट आंसर कमिटेड बाय द प्राची, वेरी वेल डन। देखो मैं आपको बताऊं इस सीरीज का आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हैं, पता कैसे?
आपको कुछ नहीं करना, लास्ट वाला क्या है, √144 विच इज 12 एंड माइनस फर्स्ट वाला टर्म, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि लास्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन से ही आपका सेटलमेंट बनेगा विच इज 11। तो आप ये भी कह सकते हैं ये 16 है, ये 1 है, तो दिस विल बी 15, ये आपका 18 है, ये आपका 3 है, तो दिस विल बी 15। बट हाउ इट इज प्रोसीडेड, तो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि बाकी सब टर्म कट जाएगा, कभी भी ऐसा कोई टर्म बचता नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं आपको दो इक्वेशन सॉल्व करके बताता हूँ। यस, so √1 plus √2, it means √2 plus 1, you will say √2 minus 1, √2 minus 1 plus 1 upon √3 plus वो √2 plus √3 and √2 minus √3, √2 minus √3। आप मुझे बताइए, ये a plus b, a minus b का लाइबिलिटी बनना है, तो 2 square minus 1 तो +1 and this is √2 minus 1 plus 2 square minus 3 square, so 2 minus 3 is -1, this is √2 minus √3, and when we will solve this equation, so minus will be executed here and this will be plus. Yes or no? So when you solve this, √2 minus 1 minus √2 plus √3 will be here, and √2 will cancel out by √2 and √3। अब देखो हुआ क्या, एक्चुअली हुआ ये कि सेकंड वाली का लास्ट वाला और फर्स्ट वाली का फर्स्ट वाला ये बचा हुआ है, और ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, √3 minus 1 ऐसे सब्ट्रैक्ट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड this thing very well. Yes or no? Now, to solve this equation, ऐसा तो मैं कहूंगा देखो आपको करना वही है, √124 भले ही ये कटे नहीं कटे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ये कटे नहीं कटे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 4 हमारा आउटसाइड आ रहा है, तो 2√41 minus 3, 257 minus √11, so answer will be the same if root is solved by itself or not solved by itself. So the answer will be in root. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को देखिए मॉडरेट कर दिया इन्होंने क्या किया, इसी को मॉडरेट कर दिया। मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या होता था, √n+1 -1 = 14 होता था। तो मैं इस +1 को इधर ले जाऊंगा तो 15, √n+1 will be this, √ will be this, n+1 = 225 and n will be 224. So n will be 224 and they are asking to is that what is the value of n, so n will be 224। और you can say easily कि 14 अगर ये है और यहाँ पे 1 है, तो 14 मतलब 115 होना चाहिए था, मतलब 15 का स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए था, तो दिस विल बी 224। अब मुझे बताइए अगर ये 25 और ये √16 है, इट मींस दिस विल बी अ स्क्वायर ऑफ 229। यस और नो, यस और नो, 29 स्क्वायर होना चाहिए। क्यों, 25 - 4 इट मींस +4 = √9 होगा फिर, क्योंकि √9 - 4 = 25 होना चाहिए था। बड़ी आर यू ऑल गेटिंग, सभी चले गए क्या, सो गए क्या सभी? हाँ जी, समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. चलिए बहुत अच्छे, स्पीड सही है, स्पीड सही है ना, स्पीड सही चल रहा है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये मिसलेनियस सीरीज है, आप करके दिखाइए कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। करिए, सॉल्व कीजिए, अपने एंड से सॉल्व कीजिए, जल्दी करिए और इसका आंसर बताइए, ABCD में से कौन सा आंसर होगा। हाँ जी,
देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, आप बस 2 स्टेप सॉल्व कीजिए, आपको सब पता लग जाएगा। 3 2 जा 6 -1 5/3 into 5 2 जा 10 -3 is 10 - 3 7/5, 5 कैंसिल। अब आपको ये पता है कि लास्ट वाली मतलब आंसर के नीचे वाला टर्म 3 जरूर होगा, या सुनो। अब मैं अगर इसे आगे सॉल्व करता हूँ, 7 2 जा 14 - 5 is 9/7, 7 will cancel out by this, then 11/9 will be proceeded, and this will be cancel out by here, and 992 into 2 is 1998 minus 997 is 1001 divided by 999, and cancel out by this, and 1001 will be here, and the answer is D option will be right. Are you all okay? Very good, very good. चलिए बहुत अच्छे, प्रयास तो कर रहे हैं आप लोग, है ना, पढ़ना तो चाहते हैं भाई, करना है, दम तो लगानी पड़ेगी, है ना, एग्जाम क्लियर करना ही पड़ेगा, जॉब तो मिलनी है, जॉब तो चाहिए, एग्जाम तो क्लियर करना ही है भाई सभी को, है ना। जॉब चाहने के लिए तो बस कुछ नहीं है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आपका स्ट्रांग होगा, एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा, वर्बल एबिलिटी तो ऑब्वियसली स्ट्रांग होती है सभी की, एंड तो इन 2 सब्जेक्ट से आपका काम हो जाएगा रिटन टेस्ट में। अगर ऐसी आप कंपनी में हायरिंग देखते हैं जिसमें जो एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट लेती है, तो वो जरूरी है, मस्ट बी है। आप कुछ नहीं तो स्कोरिंग यहां से अपना हाई कर सकते हैं थोड़ा। चलिए, फिर उसके बाद कभी कोई काम नहीं है, इसके बाद बस ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, इसके बाद कभी कोई काम नहीं है, इसका एप्टीट्यूड रीजनिंग का कभी कोई काम नहीं होता। हाँ, बस ये है जब आप ले लेते हैं नॉलेज, तो उसके बाद फिर आपको प्रोग्रामिंग में लॉजिक्स वगैरह क्रिएट करने होते हैं, मैथमेटिकल्स को आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सीआई प्रोग्राम में सीआई यूज करते हैं हम लोग, बहुत बार कैलकुलेशंस का यूज करते हैं, रिमाइंडर्स का यूज करते हैं, तो वहां पर आप यूज करते हैं, है ना। तो दिस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल सीरीज, एंड रेसिप्रोकल सीरीज एक्चुअली क्या होता है, देखो एक्चुअली ये फॉर्म नहीं है इसका, फॉर्म ये है इसका 2 into 3, ये दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ दिस सीरीज, ओके, एंड दिस विल गो अप टू 11 into 12। अब मैं आपको बताऊं, देखो क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, द आंसर इज इक्वल टू 1 upon गैप is equal to T1 minus T2. T1 is the first term and T2 is the last term. That's it. T1 is the first term and T2 is the last term. Now first term is what? First term is this and the last term is this. Okay. So first term and gap is what? Gap is the difference between the factors. ये गैप बड़ा भी होता है, कभी कभी 1 into 3 का भी गैप बना सकते हैं, 3 into 5 का भी गैप बना सकते हैं, ठीक है। 1 into 1, 1 upon 1 into minus 1 upon 12. तो 11/12 इज द राइट आंसर। मैं तो ये कहूंगा कि जब भी ये फैक्टर्स विद डिफरेंस 1 टूटते हैं, जब भी ये फैक्टर्स विद द डिफरेंस ऑफ 1 टूटते हैं, तो हमेशा लास्ट वाले फैक्टर्स जो है ना, उनका जो छोटा है वो ऊपर लिखो, जो बड़ा है वो नीचे लिखो, डायरेक्ट आंसर करो, खत्म करो, ठीक है। इस फॉर्मूले के साथ एक क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। बाकी इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक के लिए मैं अभी आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। 3 into 5, 5 into 7, 7 into 9 and 9 into 11 and 11 into 13. These are the expressions. 1 upon 2 is the gap, 1 upon 3 minus 1 upon 13. When you solve this equation, 13 and 3 will be 39, and 13 minus 13 3s are, when 1 upon 2 will be this, and 10/39 out of 1/2, this will say 5/39 will be the correct answer of this equation. Okay, so guys, आज की क्लास हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं, और आपका ट्रेनिंग सेशन जो टाइम है वो यहीं पर एंड होता है। बाकी और भी जरूरी जानकारी जो है रिगार्डिंग टू द कैंपस प्लेसमेंट ट्रेनिंग आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, और टुडे सेशन की रिकॉर्डिंग आप हमारे यूट्यूब चैनल से वॉच कर सकते हैं। So you can type the square root series by Ashish Agarwal on YouTube, and you will easily see the recording on there. Okay, and must like and subscribe the channel and follow me. So उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक विद अस on my WhatsApp group, or you can easily join our CRT program by on the details given below in the WhatsApp group. Okay, so उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। 5-6 दिन हमने आपके साथ बिताए और बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, और टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद आज अपन यहाँ से विदा लेते हैं। तो और भी डिटेल्स जो भी हैं, आपको जरूर डिटेल्स आपको WhatsApp ग्रुप पर मिल जाएंगी, आप वहां पर हमारे को फॉलो कर सकते हैं।